Good morning, everybody. In the last video, I have discussed the factorization of algebraic expression expressible as the sum of difference of two cubes. Some more problems related to the same topic I am going to discuss today. This is proof that 0.87 into 0.87 into 0.87 plus 0.13 into 0.13 into 0.13 upon 0.87 into 0.87 minus 0.87 into 0.13 plus 0.13 into 0.13 is equal to 1. We have to prove this. Now, this can be 0.87 into 0.87 into 0.87 can be written as 0.87 whole cube plus 0.13 3 times multiplied here can be written as 0.13 whole cube upon 0.87 into 0.7 can be written as 0.87 square minus 0.87 into 0.13 plus this is 0.13 whole square. Now, suppose 0.87 is equal to A. This means A and 0.13 is B. We have supposed 0.87 as 1 and 0.13 as B. Now we can write this 0.87 in place of 0.87 we can write A. So this will be A cube plus 0.13 cube that is B cube upon 0.87 square is A square minus 0.87 into 0.13 is A into B plus 0.13 square is 0.13 square is B square. Now, using the formula A cube plus B cube is equal to A plus B into A square minus AB plus B square. A cube plus B cube is equal to A plus B into A square minus AB plus B square. This will be break down into this form A plus B into A square minus AB plus B square, and the denominator is A square plus AB plus B square. These two will be cancelled. We have remaining part is A plus B. Now putting the value of A plus B, we get A is what? A is supposed as 0.87. So we have written 0.87 plus B is what? B is 0.13. That is, we have written 0.13 here. By adding these two, we get 1. This is the first question. Now, the second one. The second one problem is A cube minus 1 by A cube minus 2A plus 2 by A. In this question, what we will do? A cube can be written as A whole cube minus 1 by A cube can be written as 1 by A whole cube. Why? 1 cube is also, this is 1 by A cube. This can be written in the form of 1 cube by A cube, and this can be written as 1 by A whole cube. So this can be written as 1 by A whole cube minus 2 into, we have taken minus 2 common here. The remaining part is A minus 1 by A. Now, this is once again A cube minus, this is in the form of A cube minus B cube, where B is 1 by A. So A cube minus B cube is what? A cube minus B cube is once again A minus B into A square plus AB plus B square. So, by using this formula, A cube minus B cube, A minus B. A minus B, A is A minus B is what? 1 by A. A minus 1 by A. उसके बाद आप देखिए A square plus A into, what is B here? 1 by A. For B square, we have to use 1 by A as B. So 1 by A square minus 2 into A minus 1 by A. ये जैसा था वैसा हमने लिख दिया. After this, अब देख सकते हैं आप, this is a single term and this is another term. From these two terms, we can take common A minus 1 by A, because A minus 1 by A is present in both in the form of multiplication. So we have taken A minus 1 by A as common. So remaining part is A square plus these A will be cancelled plus 1 by A square minus this A minus 1 by A is taken out.
So the remaining part is minus 2 here. The next step is a minus 1 by a into a square plus 1 by a square, and these two will added and form minus 1. Understood? I hope you all are understanding. The next one problem is 8a cube minus b cube minus 4ax plus 2bx. This will discuss in the next part. आप सब देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमने स्टार पुट किया है. स्टार क्यों पुट किए हैं? इसमें देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम में हम फॉर्मूला तो बाद में यूज करेंगे. पहले इन दोनों में से हमको ये चेक कर लेना है कि इसमें से कहीं से कॉमन अगर निकलने वाला है, हाईएस्ट कॉमन अगर निकलने वाला है कोई फैक्टर्स, तो उसको हम बाहर कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यूज करते चलते हैं. 8a cube can be written as 2a whole cube. 2a whole cube because 8 is 2 cube and a cube is here. Minus b cube minus, अब इन दोनों में से हम minus 2x कॉमन कर लेंगे. इन दोनों में आप देख सकते हैं minus 2x is common in both. Highest common factor is minus 2x. हम इसको बाहर कर लिए. इसके बाद यहां बचता क्या है? Remaining part is 2 into 2 that is 4 and x तो हमने पहले बाहर कर लिया था. बचा क्या? a. इसके बाद इसमें से हमने माइनस निकाल लिया है, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, और इस पूरे 2bx में से हमने 2x निकाल लिया. बचा क्या यहां? b. नाउ अब आप देख सकते हैं ये पूरा टर्म 2a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, और यहां पे ये अलग एक टर्म है. अब आप देख सकते हैं इसमें से फिर से हम वही काम करेंगे. हम 2a को पूरा का पूरा x मान लेते हैं और b को हम पूरा का पूरा y मान लेते हैं. तो ये आ गया आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में. हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. हम इसको यूज कर सकते हैं. अब आप ध्यान से देखोगे हम उसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं. x माइनस वाई, एक्स के लिए 2a, y के लिए माइनस b, फिर यहां पे एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए हम 2a स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, एक्स के लिए 2a, y के लिए b, प्लस वाई स्क्वायर, y के लिए b स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2a माइनस b. अब आप ध्यान दोगे इसको हम अभी तो सीधा हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो जैसा है वैसा हम छोड़ देते हैं. 2a माइनस b इंटू 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b इज 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x इंटू, ये जैसा है वैसा हमने इसको उतार दिया है, जैसा है वैसा ही हमने लिख दिया है. अब आप देख सकते हो ये एक सिंगल टर्म है और ये एक अलग टर्म है. इन दोनों टर्म्स में से हमने 2a माइनस b को बाहर कर लिया. अब यहां क्या बचा? यहां बचा है 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहां क्या है? इसमें से 2a माइनस b बाहर जा चुका है. बचा क्या? 2x. सो दिस विल बी द रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ the another question is simplify 173 plus into 173 into 173 plus 127 into 127 into 127 upon 173 into 173 minus 173 into 127 plus 127 into 127. इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में हमने बनाया है. आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमने बनाया था, लेकिन इसमें क्या था कि इसको प्रूफ करना था. LHS इज इक्वल टू RHS दैट इज 1. हम इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, इस पार्ट में आपको बता रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन है उसी तरह का. ये 3 बार मल्टीप्लाइड है 173, इसको हम लिख सकते हैं 173 क्यूब. ये 3 बार मल्टीप्लाइड है 127, इसको हम लिख सकते हैं 127 क्यूब. नीचे ये 2 बार मल्टीप्लाइड है 173, इसको हम लिख सकते हैं 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127, चूंकि यहां पे 2 बार मल्टीप्लाइड है इसलिए 127 स्क्वायर. नाउ सपोज 173 इज इक्वल टू a एंड 127 इज इक्वल टू b. अब यहां पे आप पुट कर सकते हैं 173 के जगह पे हम a रख लिए, दैट इज a क्यूब, प्लस 127 की जगह पे हम b रख लिए, दैट इज b क्यूब, और नीचे भी हम उसी तरह से 173 के जगह पे a रख लेंगे. तो इस तरह का फॉर्म हमको मिला a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब इसको उसी तरह से सेम फार्मूले पे फिर से इस फार्मूला इसका हम यूज कर लेते हैं. ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नीचे ऑलरेडी मौजूद है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों पार्ट आप देखिए सेम है. हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, इन दोनों के बीच में अगर प्लस या माइनस साइन हो कभी नहीं कट करते हैं, क्योंकि ये दो
दोनों एक सिंगल टर्म है विथ अ मल्टीप्लीकेशन साइन हियर विच इज हिडन, तो हम इसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर लेंगे। द रिजल्ट इज a प्लस बी। अब जो a प्लस बी रिजल्ट आया सेकेंड पार्ट में, उसको हम देख सकते हैं। a प्लस बी जो आया, हम ये a किसके लिए रखे थे? 173 के लिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b वी गेट, a के लिए हमने 173 रखा, b के लिए हमने 127 रखा, तो 173 प्लस 127 इज इक्वल टू 300. दिस इज द another one result. This is the result. Now I have given some of the problems which you have to do. This is your homework. 10 questions are there. हाँ, एक बात और है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने में परेशानी भी हो रही होगी। हम स्कूल खुलने के बाद, आपका स्कूल जैसे ही खुलता है, हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे, वो सारे प्रॉब्लम्स को फिर से डिस्कस करेंगे। आप उसको एक नोट कॉपी बनाकर और उसको सारे डाउट्स को एक जगह आप लिख के रखेंगे, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू, नाइस डे।